Morning students, will start with our next sum of final account. Now this is the next sum of final account, sixth sum. It is from your textbook. It is an unsolved sum from your textbook. Now first we'll start reading the sum. What is given in the sum? Amit Bhai and Narendra Bhai are in partnership sharing profit and losses equally. So how they are going to share the profit and losses? They are going to share it equally. What we are supposed to prepare: trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay, down you have seen trial balance is given and below trial balance we have adjustment. तो हमको क्या करना है? सबसे पहले एडजस्टमेंट देखने हैं. जो एडजस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम टिक मार्क करके लेंगे विच amount we are supposed to write in first column and which one in the second column. As usual, we have closing stock, then we have uninsured goods, then we have RDD. RDD है तो we have sundry debtors, bad debts we are supposed to write in first column. Then we have outstanding expenses, rent and salary. So this two also will write in first column. उसके अलावा we have depreciation, factory building and furniture. So this both also will write in first column. And furniture we have here. Okay, down. Remaining we can write in our book as it is. So we'll start the sum with the debit side of the trial balance. Trial balance का debit side मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में लिखा है आपके कन्वीनियंट के लिए कि आपको समझ में आए. We'll start with the first thing. What is given? Plant and machinery. Okay, plant and machinery is given. आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट बना के रखी है. The opposite side I have are trading and profit and loss account. So I will write plant and machinery first. Plant and machinery, we have no adjustment regarding this, so directly we can write the amount in second column, 2,80,000. Then next we have, साथ साथ में टिक मार्क करते जाएंगे. हमने इसका एडजस्टमेंट ये एंट्री हमने कर ली है. फैक्ट्री बिल्डिंग एडजस्टमेंट इज देयर. Will write factory building, but amount I will write in first column only. Okay, factory building, the amount is 75,000 क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस करना है. आफ्टर फैक्ट्री बिल्डिंग इफ यू कैन सी वी हैव सन्ड्री डेप्टर्स. फैक्ट्री बिल्डिंग के नीचे हम क्या करेंगे? विल लीव वन लाइन एंड देन विल राइट सन्ड्री डेटर्स and the amount of debtors is 28,700. Okay, so we completed till here. Then we have purchase. Purchase will write in trading account. इस साइड में मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है. इफ यू कैन सी दिस इज माय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी to purchase. Okay, and amount I will write in first column only because we have return. After purchase we have bad debts. अब ये सम जो है इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बीच में लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. When your old RDD amount is more than your bad debts, new bad debts and new RDD, then we are supposed to write on opposite side. तो यहाँ पर जो है वो opposite side में इफेक्ट आएगा. तो फॉर्मूला भी उल्टा ही लिखना पड़ेगा आपको. फॉर्मूला क्या आएगा? Buy old RDD, और ओल्ड RDD कहाँ दी है? यहाँ पर सी 2700. तो वो देखने के बाद में ही समझ में आता है कि यहाँ पर माइनस करने के बाद में नेगेटिव आंसर आएगा. सो वी आर सपोज टू राइट ऑन क्रेडिट साइड. फॉर्मूला क्या है? बाय ओल्ड RDD माइनस फर्स्ट विल राइट बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, and then we are supposed to write new RDD. Okay, bad debts we have from our trial balance 500. So we completed till here. Then we have sales return. Sales return आपको भी पता है ट्रेडिंग अकाउंट. बाय सेल्स लिख के रखती हूँ, जब अमाउंट आएगा तब अमाउंट लिख लेंगे. लेस रिटर्न, एंड रिटर्न ऑफ सेल्स इज 2,200.
ओके, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट इज गिवन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1/10/18. दैट मीन्स वी हैव परचेस्ड ऑन 1st October एंड ऑन दैट वी विल गेट 10% इंटरेस्ट. तो हमको ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों में इफेक्ट करना है. सन्ड्री डेप्टर्स के नीचे आप 2-3 लाइन छोड़ दो, लीव 2-3 लाइन्स, देन यू कैन राइट 10% government bonds and the amount of government bond is 40,000. अब ये 40,000 पर आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. Now the interest has to be at the rate of 10% but only for 6 months. It will come 2,000. So here we'll get 42,000. Now this is, as this is an income, you are not supposed to write in डेबिट साइड, यू आर सपोज टू राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर P&L अकाउंट है मेरा, उसके क्रेडिट में लिख के रखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ओके, 2,000. दोनों इफेक्ट हो गए. दिस टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आर नोन एज हिडन एडजस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारी? इम्पोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट ड्यूटी यू नो, ट्रेडिंग अकाउंट वी आर सपोज टू राइट, सो विल राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट. परचेस के नीचे आप लिख सकते हो टू इम्पोर्ट ड्यूटी. एंड इम्पोर्ट ड्यूटी इज आर 1,000. सॉरी, जगह तो छोड़नी भूल गए हम. यहाँ पर रिटर्न माइनस करना है, इसलिए पहले लिख के रखो ना, अच्छा रहता है. लेस रिटर्न टू इम्पोर्ट ड्यूटी and import duty is 1,800. After import duty, what we have? We have legal charges, where we are supposed to write again our profit and loss account. Here we have P&L account. There will write two legal charges. $2,000 in second column. After legal charges, if you can see what we have motive power. And motive power where we write in our trading account. तो import duty के नीचे हम लिख सकते हैं to motive power. Motive power. And how much is motive power? 12,000. यहाँ तक क्लियर हुआ. उसके बाद में हमारे पास वेयर हाउस रेंट. इट इज नॉट फैक्ट्री रेंट, इट इज वेयर हाउस रेंट. वी कैन राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू वेयर हाउस रेंट. नाउ व्हाट इज वेयर हाउस रेंट? 1,800. ओके, आफ्टर वेयर हाउस रेंट वी हैव कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. दोनों एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड. दिस इज आवर एसेट साइड. Cash in hand and cash at bank. Simultaneously we'll write both the things. Okay, cash in hand is 20,000 and this we have 70,000. यहाँ तक की पोस्टिंग हमने कर ली. नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट है, सैलरी है, रेंट है. ऑल द थ्री विल कम इन आ P&L अकाउंट, आ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पहले लिखते हैं टू एडवर्टाइजमेंट. ओके, नाउ एडवर्टाइजमेंट इज गिवन टोटल अमाउंट 10,000. अब फिर से मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दो इट इज पेड 10,000 बट इट इज पेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2 years. And that also for current year it is paid from only 1st Jan till 31st March. That means you are supposed to include for 3 months. बाकी सारा का सारा आपको प्रीपेड करके वहां पर दिखाना है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस प्रीपेड and this will come 8,750. और यहाँ पर करंट ईयर का सिर्फ 1,250 अमाउंट है.
यहाँ तक क्लियर हुआ? साथ में ही आप इसका सेकेंड इफेक्ट कर देना, बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8750. After this we have salary and rent, both प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट में आपको लिखना है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर ऊपर मैं लिख सकती हूँ 2 salaries and salaries we have 3800. इसमें एडजस्टमेंट है, जगह छोड़ेंगे, नीचे हम लिखेंगे 2 रेंट and rent is 1500, that is 1500. We completed till here. Drawing our profit and balance sheet, liability side, capital लिख के रखते हैं। capital first we'll write the name, अमित भाई है, मैं सिर्फ अमित लिख रही हूँ। okay, we'll write here bhai full. Then we have leave 2-3 lines, Narendra bhai, minus drawing, if you are preparing capital account in the debit side, you can write first one we have 2400, second one 3200. okay, after drawing we have in our question furniture, bill receivable, freehold property, both we are supposed to write in all three should be written in बैलेंस शीट एसेट साइड। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, पहला लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर विल राइट इन द फर्स्ट कॉलम बिकॉज वी हैव एन एडजस्टमेंट 1,95,800. लीव वन लाइन, देन विल राइट बिल रिसीवेबल and bill receivable amount is 20,700, which we can write directly in second column, and the last one in the debit balance is freehold property 41,000. With this we completed our, if you can see, we completed our debit side. Now we'll go for the credit one. कैपिटल दिया है, सबसे पहले यही लिखते हैं। यहीं पर है हमारी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 3,50,000 and here we have 3 lakhs. Then we have sales भी यहीं पर है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा 1,80,000 minus 2,200 will get 1,77,800. सेल्स के बाद में बिल्स पेबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बिल्स पेबल 8,500 बिकॉज वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट। उसके बाद में डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ बाय डिस्काउंट, amount is 1,200. After discount, if you can see, I have creditors. Here I will write creditors, liability side creditors 38,500. RDD already मैं आपको लिख के बता चुकी हूँ। okay, that will come on credit side because old RDD is more than new bad debts and new RDD. Bank loan, again liability, bank loan 15,000 and the last one we have purchase return. तो हम परचेस में से माइनस कर लेते हैं, यानी कि इस सब में हमको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया गया था। सो हियर वी हैव 83,500. अब बचे हमारे एडजस्टमेंट, फटाफट एडजस्टमेंट देखते हैं और उनके इफेक्ट। पहला एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, what is the amount? 43,000. second effect, balance sheet asset side closing stock 43,000. second adjustment,
अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 स्टोलन, चोरी हो गए, और वो अनइंश्योर्ड थे, यानी कि पूरा का पूरा नुकसान हुआ. फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय गुड्स लॉस्ट, सॉरी आप स्टोलन वर्ड भी लिख सकते हो, लॉस्ट बाय थेफ्ट, अमाउंट फुल 8,000, पूरा का पूरा हमारा नुकसान हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट के नीचे हम लाइन छोड़ेंगे क्योंकि रेंट के लिए भी एडजस्टमेंट है. विल लीव वन लाइन एंड देन विल राइट टू लॉस बाय थेफ्ट. थेफ्ट का मतलब है चोरी होना. फुल अमाउंट 8,000. Now next we have, if you can see the question, we have RDD and bad debts. ये दोनों को हम साथ में ही करने वाले हैं. तो साथ में पहले डेटर्स की तरफ चलते हैं. लेस न्यू बैड डेब्ट्स, that is 500. Less new RDD, that also at the rate of 2%. कितना है? Rate is 2%, and on 2% 28,200 पर 2% आता है 564. माइनस करके अमाउंट बाहर लिखना है 27,636. सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पर बैड डेब्ट्स लिखा है, एड 500 न्यू बैड डेब्ट्स 564. अभी भी देखेंगे, दिस इज ओनली 1,564, दिस इज 2,700. माइनस करने के बाद में अमाउंट आता है हमारे पास 1,136 रुपीज. ओके, so we have completed our two adjustment, this one and this one. अब आउटस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं. क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? we have rent and salary, so we'll add it. सैलरी यहाँ लिखा है हमने, add outstanding, add outstanding. how much is salary? 300 rupees. here we'll get 4,100. एड आउटस्टैंडिंग, रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है? 800 है, विल गेट 2,300. सेकेंड इफेक्ट, लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज. रेंट इज 800, सैलरी इज 300, टोटल आपको बाहर लिखना है 1,100. Now the next adjustment, ये हो गया डेप्रीसिएशन. 2,500 बिल्डिंग है, 1,800 फर्नीचर है. फटाफट इनके इफेक्ट करते हैं. लेस डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन. ओके, now what is the amount? first one we have 2,500, so this will get 72,500. अगले वाले पर 1,800 है, विल गेट 1,94,000. सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पर लॉस बाय थेफ्ट लिखा है, वहाँ पर लिख सकते हैं टू डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग एंड फर्नीचर. 2,500, 1,800. टोटल करके हम कहाँ लिखेंगे? विल राइट इट आउटसाइड, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 4,300. अब हमारा सारे एडजस्टमेंट हो गए. क्या काम बचा है? क्लोजिंग द अकाउंट. वी आर सपोज टू टैली द अकाउंट. विल स्टार्ट विद आवर ट्रेडिंग अकाउंट. पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ चलते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इफ यू सी वी हैव ओनली 3 थिंग्स. तीनों का टोटल करने के बाद में टोटल आ रहा है 2,28,800. सेम टोटल विल राइट हियर आल्सो इन द सेम लाइन, 2,28,800. उसमें से 83,500, 1,800 और 12,000 माइनस करने के बाद में जो बच गया वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट.
and our gross profit after subtracting will get 1,31,500. कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,31,500. अब अगर आप क्रेडिट में देखोगे तो फिर से वी हैव ओनली 4 थिंग्स. विल एड एंड राइट द टोटल डाउन. अब यहाँ का टोटल है 1,35,836. Same total I am going to write here. 1,35,836. उसमें से आप 4,100, 2,000, 1,800, 1,250, 2,300, 8,000, 4,300 minus करके whatever we get, that is our net profit. So we'll write here 2 net profit carried forward. Where will carry? Capital account. यहाँ मैं पूरा नाम नहीं लिखती हूँ, अमित, नरेंद्र, और यहाँ पर माइनस करने के बाद में अमाउंट आ रहा है 1,12,086. 1,12,086 दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वन विल गेट 56,043. 56,043. ओके. जैसे आप इसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखोगे, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी. 56 add net profit. Here also we have add net profit. Okay, 56,043. After adding and subtracting, drawing will get here 4,03,643. Here we'll get 3,52,843. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐड करने के बाद में हमारा जो टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का, दैट विल कम 8,19,586. and this side after adding, if you can see, 2,80,000 plus 72,500 plus 27,636 plus 42,000 plus 20,000, 70,000, 8,750, 1,94,000, 20,700, 41,000, 43,000. Our total will come same 8,19,586. ध्यान से सम देखना है. एक बार देखने से, व्यू करने से नहीं समझ में आएगा तो आप 2 बार व्यू करो, 3 बार व्यू करो. अनसॉल्व सम है, अच्छे से सॉल्व करो नोटबुक में. wherever you have doubt, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet. View the lecture, again I am telling, view the lecture 2 to 3 times. जहाँ पर आपको डाउट है किसी एडजस्टमेंट में, कहीं पर भी कुछ भी डाउट है, आप मेरे को गूगल मीट में जब मैं लेक्चर लेती हूँ तभी पूछ सकते हो. 2-3 बार व्यू करके अनसॉल्व सम है अपने नोटबुक में सॉल्व करना है. ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे.